Good morning, everyone. Hope you all are fine, beta. I hope you have done models in your practice book and the passages that I gave you for trial. The answers are in the documents. Please tell you the answers. Match your responses with the paragraph. Okay, and write them in the fair notebook, beta. Now we are proceeding to chapter number 6, The Luncheon by Somdus Mogum. Beta, the word luncheon tell you that it talks about some lunch. Okay. Now pre-reading task. Prepare an ideal diet chart for a teenager. Beta, that you are supposed to do it with the help of your parents. You can use the help of net. You can use the help of a dietitian. Does it match with the actual diet you are taking? As you are a teenager, so does the same diet, does it match with your diet? You have to make a comparison also. Okay. What could be the possible consequences of not taking a balanced diet? And what could be consequences होते हैं results बेटा? क्या results होंगे अगर आप एक balanced diet नहीं लेते तो? Definitely you will not be healthy, of course. आप हेल्दी नहीं होंगे बिल्कुल भी. यू सी मैनी चिल्ड्रन अराउंड यू दैट दे आर ओबेस. ओबेस होते हैं, मोटे हैं काफ़ी ज़्यादा. दे लैक फिजिकल एबिलिटीज़. वो उनमें क्या है, if you are told if you told them to if you tell them to run, they just ignore it, or they lack this ability of running. वो जल्दी थक भी जाते हैं, they get tired easily. Okay. Okay, and with the oily stuff or the junk food that you are taking in your diet, especially harm your heart. Okay, discuss with your partner now. So I think this is enough. Work with your partner and prepare a list of the etiquettes and table manners one must observe during a formal lunch in the family. Beta, table manners is a word that is being used for having a formal lunch. Okay, first of all, forks and knives का use करना चाहिए बच्चे हमें. Then we should have a table cloth. एक टेबल क्लॉथ होना चाहिए वहाँ पे. We should not make produce sound while eating with spoons. If you have to cut something, use fork and knife for that, and then eat it. Chew it properly, and don't speak while you are having dinner or lunch. Okay. At last, when you are over with the food, turn off your spoon. अपनी spoons और fork को उल्टा करके रखते हैं. That means you are done with dinner. These are the table manners one must adopt wherever you sit for having your meals. Now read this interesting story by Somnus Morgan. I caught sight of her at the play. See, the narrator Somnus Morgan met a lady at a play, and in answer to her beckoning होता है बेटा signaling by a movement of the head or hand. जब हम किसी को इशारा करते हैं सिर हिला के या हाथ हिला के भी, तुम यहाँ आके मेरी बात सुनो. I went over during the interval and sat down beside her. मैं इंटरवल के टाइम, जब प्ले का इंटरवल होता है जब, तो मैं वहाँ उसको बिसाइड होता है साथ में बैठना बेटा. आई वेंट टू हर एंड सैट नेक्स्ट टू हर. इट वॉज लॉन्ग सिंस आई हैड लास्ट सीन हर. कहते मैंने उस लेडी को बहुत टाइम पहले देखा था, क्वाइट अ लॉन्ग टाइम. एंड इफ समवन हैड नॉट मैंशनड हर नेम, आई हार्डली थिंक आई वुड हैव रिकॉग्नाइज्ड हर. कहते अगर कोई उसका नाम नहीं लेता तो शायद मैं उनको पहचानता भी नहीं. दैट मीन्स इट वॉज प्रिटी लॉन्ग टाइम. शी एड्रेस्ड मी ब्राइटली. लेकिन उस लेडी ने मुझे बहुत जल्दी ही क्या कर लिया, पहचान लिया. वेल, इट्स मैनी ईयर्स सिंस वी फर्स्ट मेट. कहते हैं बहुत साल पहले की बात है जब हम मिले थे. हाउ टाइम डज फ्लाई. टाइम कितनी जल्दी क्या होता है, भाग जाता है. वी आर नन ऑफ अस गेटिंग एनी यंगर. अब जैसे जैसे टाइम बीतता है तो हम क्या होते हैं, वी आर गेटिंग ओल्ड. हम बड़े हो रहे होते हैं, बुजुर्ग हो रहे होते हैं. डू यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई सॉ यू आस्क्ड मी टू लंचन. कहते कि क्या वो लेडी क्या कह रही है कि क्या क्या आपको याद है जब हम पहली बार मिले, आई सॉ यू, मैंने तुम्हें पहली बार मिली थी. यू आस्क्ड मी टू लंचन. आपने मुझे इनवाइट किया था किस पे, लंचन पे. लंचन इज़ अ फॉर्मल मीटिंग एट लंच. डिड आई रिमेंबर. एंड द नरेटर सॉम्ब्रस मॉर्गन वॉज ट्राइंग टू रिकॉल. वो याद करने की कोशिश करेंगे कि सच्ची में मैंने तुम्हें लंच पे इन्वाइट किया. इट वॉज 20 years ago एंड आई वॉज लिविंग इन पैरिस. नरेटर अपने बारे में बता रहा है कि ये 20 साल पहले की बात है. व्हेन आई मेट द लेडी, दैट मीन्स आई मेट द लेडी 20 years ago when I used to live in Paris.
आई हैड अ टाइनी अपार्टमेंट. बेटा इसको टिनी नहीं बोलेंगे, इसको टाइनी बोलते हैं. टाइनी इज़ अ स्मॉल, अपार्टमेंट इज़ अ काइंड ऑफ फ्लैट इन द लिटिन क्वार्टर ओवर लुकिंग अ सिमिट्री. कहते हैं ये उसके घर की डिस्क्रिप्शन बताई गई है कि वो कहाँ रहता था. लिटिन क्वार्टर में रहता था. क्वार्टर इज़ अ एरिया लुकिंग ओवर सिमिट्री, जो कि बहुत सिमिट्री छोटे से एरिया में क्यूबिकल टाइप्स में. एंड आई वॉज अर्निंग बेयरली इनफ मनी टू कीप माई बॉडी एंड सोल टुगेदर. बेयरली होता बेटा हार्डली. मैं बहुत ही क्या था, बहुत कम पैसा कमाया करता था कि जिससे मेरी बॉडी की और मेरी सोल की नीड्स पूरी हो सके. बॉडी की नीड्स क्या है बेटा, हमारी फूड, क्लोथ एंड शेल्टर. एंड सोल की क्या होता है, हैविंग अ वेरी good life. So so the later Somras Morgan was earning hardly to keep his body and soul together. He could not lead a very luxurious life. Luxury ऐशपरस्ती वाली लाइफ को नहीं जी पा रहे थे. She had read a book of mine. So the later was a writer and had written to me about it. कहते कि उसने मेरी बुक पढ़ी थी और मुझे उस लेडी ने मुझे बुक के बारे में लिखा था. आई आंसर थैंकिंग हर. मैंने उसको आंसर किया और थैंक यू कहा बिकॉज शी प्रेज्ड मी. एंड प्रेजेंटली आई रिसीव फ्रॉम हर अनदर लेटर सेइंग दैट शी वॉज पासिंग थ्रू पेरिस एंड वुड लाइक टू हैव अ चैट विद मी. सी now he got another letter from the lady that she was passing through Paris. वो पेरिस से होकर जा रही थी कहीं पे. एंड वो किससे मिलना चाह रही है, नरेटर से. सो हु इन्वाइटेड फॉर लंच नाउ? It was not narrator basically who desired, the lady, or you can say the lady fan of narrator wanted to meet him. Okay, but her time was limited and only free moment she had was on the following Thursday. कहते हैं उसके पास टाइम बहुत लिमिटेड था पेरिस में, और जो टाइम था वो थर्सडे को था. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल्सो ऑन विच दे प्लान अ मीटिंग. She was spending the morning at the Luxembourg, it's the name of a place, and would I give her a little luncheon at Foyt's after all? कहती है क्यों ना मैं लग्जमबर्ग के पास में एक रेस्टोरेंट है फॉयट्स जिसका नेम है, और उसको क्या बोला कि क्या क्यों ना मैं लेडी को एक लंच ऑफर करूं, कहाँ पे, फॉयट्स में मिलने के लिए. बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू मीट योर गेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम यू वुड लाइक टू गिव अ गुड इम्प्रेशन ऑफ इट, है ना. आप देना चाहते हो ना कि आपके घर में जो भी आए या आप किसी से मिलने जा रहे हो तो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए. ओके. फॉयट्स इज़ अ Foyt's is a restaurant at which the French senators eat. French senators, members of the Senate. As you have members of parliament, they have members of Senate beta in foreign countries. And these rich people, French senators and senators, the members of parliament or some official assembly, definitely they eat at a good place. So, and it was not meant for ordinary people. And it was so far beyond my means. यह मेरी मीन्स के, मेरी पहुंच से बहुत बाहर था. दैट आई हैड नेवर इवन थॉट ऑफ गोइंग ऑफ देयर. कहते मैं कभी सपने में सोच भी सकता नहीं था वहाँ जाने के बारे में. बट आज शी वॉज अ फीमेल फैन ऑफ माइंड एंड आई वॉन्ट टू गिव अ गुड इम्प्रेशन ऑफ माइंड, सो आई डिसाइडेड टू गिव अ लिटिल लंचन एट फोर्ट्स. ओके. बट आई वॉज फ्लैटर्ड. मैंने क्यों ऐसा सोच रहा था, क्योंकि मैं क्या था, फ्लैटर्ड. उस लेडी ने मुझे प्रेज़ किया और मैं उसकी प्रेज़ को बहुत ज़्यादा क्या कर गया, मन पे ले गया, मैं खुश हो गया. एंड आई वॉज टू यंग टू हैव लर्न टू से नो टू अ वुमन. कहते कि मैं एक यंग क्या था, एक यंग बॉय था जिसने जो फीमेल्स को मना भी नहीं कर सकता था. I had 80 francs to last me the rest of the month. बेटा francs is a currency as rupees. कहते मेरे पास 80 francs थे पूरे मंथ को चलाने के लिए. And a modest luncheon should not cost more than 15. Modest होता है हल्का फुल्का लंच, अगर हम ले भी लेंगे तो 15 francs खर्च हो जाएंगे. If I cut out the coffee for the next 2 weeks I could manage well enough. कहते कि अगर मैं 15 दिन कॉफ़ी अपनी कट कर देता हूँ अपनी रूटीन में से, तो मैं आराम से मैनेज कर लूँगा. See, he had to plan a budget for his month. If he's going to spend extra, he had to manage what, a budget. So now he's making up his mind to invite his guest at Foyt's, and he's planning ways to manage his budget of the month. I hope you are clear with this.
I answered that I would meet my friend by correspondence at Foyt's on Thursday at 12:30. 12:30 is better 12:30. So मैंने उसको फीमेल फ्रेंड को अपनी क्या आंसर किया कि ओके फाइन लेट्स मीट एट Foyt's at 12:30 on Thursday. She was not so young as I expected in appearance. कहते जितना मैंने कि सोचा था कि वो क्या होगी काफ़ी यंग होगी ऐसा नहीं था. She was imposing rather than attractive. शी वॉज इम्पोजिंग होता है बेटा इम्प्रेसिव रादर देन अट्रैक्टिव. वो उतनी अट्रैक्टिव नहीं थी, आकर्षित करने वाली नहीं थी. अदर वो क्या कर रही थी आपको इम्प्रेस कर रही कि ठीक है वो अच्छी लेडी है बट इतनी भी सुंदर नहीं है. शी वॉज इन फैक्ट अ वुमन ऑफ 40. कहते कि वो 40 ईयर्स की थी. एंड 40 ईयर्स बेटा इट्स नॉट सो यंग एज है ना. 40 में आपके क्या रहते हैं आप इतने यंग नहीं रहते हैं. शी वॉज टॉकेटिव. वो बहुत बातूनी थी. बट सिंस शी सीम टू इंक्लाइन टू टॉक अबाउट मी आई वॉज प्रिपेयर टू बी एन अटेंटिव लिसनर. कहते हाँ ऐसा था कि वो मेरे बारे में बात करना चाह रही थी तो मुझे ना चाह के कह लो या बिना खुशी के कह लो मुझे एक अटेंटिव लिसनर की तरह उसकी बातों सुनी क्योंकि वो मेरे बारे में बात कर रही थी. I was startled. Startled क्या होता है बेटा confused, puzzled you can say. Okay, surprised also you can say. Use the word when the bill of fare was brought. Bill of fare क्या होता है बेटा जहाँ पे सारे क्या होते हैं आइटम्स डिस्प्लेड होती हैं जब आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं. इट इज़ नॉट रेस्टोरेंट, इट इज़ रेस्टोरेंट. दिस करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ रेस्टोरेंट इज रेस्टोरेंट. कहते जब आप बिल ऑफ फेयर क्या हुआ बेटा जिसमें सारी आइटम्स दी होती कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं साथ में उनके प्राइस टैग्स दिए होते हैं. सो व्हाट डू यू कॉल इट? वी कॉल इट मेन्यू, नॉट मीनू. इट्स मेन्यू कार्ड. Okay, when the bill of fare was brought, for the prices were a great deal higher than I anticipated. एंटिसिपेटेड होता बेटा थॉट. जितना कि मैंने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस क्या थे काफ़ी हाई थे. बट शी रीअश्योर्ड मी. उसने लेकिन मुझे क्या दिया तसल्ली दी. व्हाट शी सेड लेट्स सी. आई नेवर ईट एनी थिंग फॉर लंच एंड शी सेड. कहती मैं लंच में कभी कुछ लिया ही नहीं करती हूँ. और डोंट से दैट. आई आंसर जेनरसली. कोई आपके घर में आए गए आप जब उनको कहते हैं क्या लेंगे आप तो सब गेस्ट क्या कहते हैं नहीं हम कुछ नहीं लेंगे हम अभी लेके आए हैं. बट देन ऑल्सो वी इंसिस्ट क्या किया आप हम उन्हें इंसिस्ट क्या करते हैं नहीं कुछ तो आपको लेना ही पड़ेगा. सो द नेटर वॉज सेइंग नहीं आप ऐसा मत कहिए आपको कुछ तो लेना ही पड़ेगा. आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग. नाउ शी केम टू वन थिंग कि मैं कुछ ना से तो चलो वन थिंग तो मैं कुछ चलो एक चीज़ ले लूँगी. आई थिंक पीपल ईट फार टू मच नाउ अ डेज. कहते हैं आजकल लोग क्या करते हैं बहुत ज़्यादा खाने लग गए हैं. अ लिटिल फिश परहैप्स. कहते चलो मैं हल्की बहुत फिश ले लूँगी. आज शी वॉज अ फॉरेन लेडी है ना. वी आर टॉकिंग अबाउट पैरिस फॉरेन कंट्रीज वेयर नॉन वेज इज़ अ कॉमन थिंग. Perhaps I wonder if they have any salmon. Salmon बेटा फिश होती है which is pink in color. Or we can say that it is a very large fish with pinkish color. तो कहते हैं अगर उनके पास कोई सेलमन है तो मैं सेलमन ले लूँगा थोड़ी बहुत. वेल इट वॉज अर्ली इन द ईयर फॉर सेलमन. कहते हैं और फिशेस भी क्या होती हैं विद सीजन आती हैं जैसे हमारे सीजनल फ्रूट्स आते हैं विद सीजन आते हैं. सो कहते हैं अभी फिश सेलमन के लिए क्या था बहुत ही क्या था अभी थोड़ा जल्दी टाइम वो मांग रहे थे. एंड इट वॉज नॉट ऑन द बिल ऑफ फेयर. कहते हैं और वो मेन्यू कार्ड में भी अवेलेबल नहीं था. बट आई आस्क्ड द वेटर इफ़ देयर वाज एनी. लेकिन मैंने फिर भी अपने गेस्ट को खुश करने के लिए उसके आगे एक अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए मैंने उससे वेटर से पूछ लिया कि अगर आपके पास कोई हो. येस अ ब्यूटिफुल सेलमन हैड जस्ट कम इन. इट वॉज द फर्स्ट दे हैड. लुक एट द वर्ड दे हैड. कहते हैं उनके पास पहली ही सेलमन पहली बार आ रही है. एंड वेन द ऑफ सीजनल थिंग्स कम इन मार्केट दे कम एट अ वेरी ह्यूज प्राइस. अगर फॉर एग्जांपल अगर आप मैंगोज़ की डिमांड दिसंबर में करें विच इज़ ऑफ सीजनल फ्रूट सो यू गेट बाय 300 रुपीज़ के जी और 400 रुपीज़ के जी. Likewise, Selman was very expensive that time, and narrator was a struggling writer. His earning was not much, so and he was moreover cutting short of his what of his daily drinks or the diets so that he could manage his you can budget of the month. So now and if they are going to order salmon then definitely it's going to cost him very much. Yes, a beautiful salmon had just come in. It was the first they had. They refers to the restaurant's honor or something. Okay, I ordered it for my guest, and the narrator ordered for his guest.
The waiter asked her if she would have something while it was being cooked. कहते जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं बच्चे, तो द वेटर डेफिनेटली आस्क, मैम कुछ आप स्टार्टर्स में लेंगे? स्टार्टर्स क्या होता है, शुरुआत में कुछ हल्का फुल्का स्नैक लेंगे टिल द डिश गेट्स रेडी. नो, शी आंसर्ड, आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग. कहते कि मैं कभी भी एक चीज़ ज़्यादा नहीं खाती अनलेस यू हैड अ लिटिल कैवियर. कैवियर क्या होता है बेटा? अ सॉल्टी रेलिश मेड फ्रॉम द एग्स ऑफ स्टर्जन और सर्टन अदर लार्ज फिश ईटन एज एन एपिटाइजर. कहते हैं वो फिश का ही क्या होता है, एग्स के बना हुआ कुछ कोई डिश होती है जो कि एपिटाइजर, जिससे कि भूख आपकी बढ़ जाए. वो अगर आपके पास वो है तो मैं उसके लिए मना नहीं करूँगी. आई नेवर माइंड कैवियर, मैं कैवियर तो लेती ही रहती हूँ. सो नाउ शी हैड ऑर्डर्ड, मैं कैवियर तो कैसे भी लेती ही रहती हूँ. आई एम यूज टू इट. माई हर्ट सैंक अ लिटिल, मेरा दिल थोड़ा सा धड़का, बिकॉज शी हैड ऑलरेडी ऑर्डर्ड थ्री थिंग्स. नाउ आई वॉन्ट लाइक टू आस्क व्हाट वर द थ्री थिंग्स. फर्स्ट शी ऑर्डर्ड फॉर सैल्मन, then she ordered for what? I mean, it was caviar. Now third thing she is going to ask, she'll be ordering it. Now she had ordered two things. My heart sank a little. I knew I could not afford caviar. मैं जानता था कि मैं कैवियर को अफोर्ड नहीं कर सकता, बट आई कुड नॉट वेरी वेल टेल हर दैट. लेकिन मैं अपनी गेस्ट को ये अपनी फाइनेंशियल कंडीशन भी दिखा नहीं सकता था. आई टोल्ड द वेटर बाय ऑल मीन्स टू ब्रिंग कैवियर. मैंने अपने वेटर को कहा कि जैसे मर्जी लेके आओ, कैवियर तो ले ही आओ. फॉर माई सेल्फ आई चोज द चीपेस्ट डिश ऑन द मेन्यू एंड दैट वॉज अ मटन चॉप. कहते लेकिन मैंने अब मेरा गेस्ट कुछ खा रहे और मैं खाली बैठ नहीं सकता था. सो आई हैड टू ऑर्डर वन डिश for me. And when I look at the menu card, and it was the mutton chop was the cheapest dish on the menu, so I ordered one for me. I think you are unwise to eat meat, she said. कहते हैं आप बहुत ही क्या अनवाइज हो, वाइज होता है बुद्धिमान. कहते हैं आप बहुत ही क्या हो, बेवकूफ़ हो, जो आप क्या खाते हो, मीट खाते हो. I don't know how you can expect to work after eating heavy things like chops. कहते हैं आप मुझे समझ नहीं आता कि इतना heavy food खाने के बाद आप लोग काम कैसे करते हो. Because when your tummy is full, you feel sleepy, dizzy, है ना. I don't believe in overloading my stomach, and she's giving her example that I don't eat eat much and I do not overload things in my stomach. Then came the question of drink. अब क्वेश्चन किसका आ रहा था कि आप ड्रिंक क्या लोगे. I never drink anything for luncheon, she said. कहती कि मैं लंच पे कभी भी ड्रिंक नहीं लेती. Neither do I. I asked promptly. मैंने जल्दी से फटाफट क्या कह दिया कि मैं भी नहीं पीता कुछ भी. Before she could order something, so the narrator said imposingly कि मैं भी नहीं कुछ लेता. We have to see further whether she ordered something or not. Let's do the next, further reading of chapter in the next class. Okay? Till then, give a reading to the chapter, and if you like it, go ahead with the further reading and try out the meanings as well. You will love this chapter as well.